o'clock come to back home by car, and then 1 hour rest near 6 o'clock. Then prepare wuzu maghrib for masjid, and 7 o'clock come back to room, and after prayer dinner and go to bed for sleeping. Okay. So that was your routine. Yes, ma'am. Great. If I say that this routine you should convert into your brother routine, can you convert? मतलब आपने ये जो रूटीन बताई है, क्या आप अपने भाई की रूटीन बता सकते हैं या बेटे की? Yes, ma'am. Please tell me. My son Abdullah Irfan. Abdullah Irfan woke up early in the morning, 6 o'clock, and take a bath and breakfast and go to school by rickshaw Wanton, and Abdullah goes to school by rickshaw. Don't worry. Don't look at the board. You just say what comes in your mind. Don't try to correct it. It's okay. If you're making mistakes, it's okay. It's not a big deal. And then go to school. Then 11 o'clock rest time. But then 12 o'clock near about the start class, and 1 o'clock close school and come back to home. Then 2 o'clock tuition, go to tuition, and then 6 o'clock come to back home and dinner वगैरह, eating dinner. ठीक है. Yeah. And then he goes for sleep, right? Yeah. That's great. That's great, Irfan. You did Thank very you, well. Nasir, are you there? Nasir is not there. Abdul Rahman. Yes, please. Yeah. Could you tell us about your brother's routine? Yeah, my brother, he lives in Pakistan. He's working in Sialkot. Every morning he wake up about 6-7 o'clock. After having breakfast, he leave for the Sialkot. So after spending time at work, in the evening he come back to home. So after having his dinner, he go back to bed. So that's what his daily routine is. So yesterday we covered that he is working or he works. He is working as a state agent. Muhammad Irfan, please mute your mic. So Abdul Rahman, we were talking about yesterday about he is working and he works. He is working का मतलब होगा कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वहाँ पे हैं. But he works as a agent, as you mentioned. तो अगर वो जॉब कर रहे हैं ना परमानेंटली वहाँ पे एक टाइम पीरियड के लिए, तो you have to say he works. All right. Right? Because
if I teach, it's my profession. If I am teaching, so I will say, or I would say, if someone is asking about me, so I will say I teach. इफ आई एम सेइंग आई एम टीचिंग, इसका मतलब है मैं सिर्फ अभी आपकी जो 1 घंटे की क्लास है वो लूंगी बस, उसके बाद जो मेरा प्रोफेशन है वो नहीं होगा. आई एम टीचिंग अगर मैं बोलूंगी तो, बट इफ आई एम सेइंग आई टीच, इसका मतलब है मैं मेरा मेरा ये प्रोफेशन है, मैं ये करती हूँ. ठीक है. Yeah, so I want to make it clear. Right, that's great. You did very well. ठीक है. Now tell me. So Ali joined us, right? Abdul Rahman, please tell me about your routine. I wake up in the morning about 6, 7 o'clock. After having my breakfast, I leave for the work. So I spend all my day at the work. I finish about 5 o'clock, and then I head back to home. After having my dinner, I watch a little bit telly. Then I go sleep. That's great. That's great. Okay. So now we have Ali. Ali, are you there? Yes, ma'am. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. आपको रिकॉर्डिंग मिल गई थी लेक्चर की? जी मिल गई थी. देख ली थी आपने? थोड़ी बहुत. Okay, so now are you able to tell us about your daily routine? Can you tell us? Yes, sure. I will try. That's great. I wake up early in the morning at 5 o'clock. I go to mosque for pray. I do my lunch. I do my lunch. Is it? Oh, I offer praying. Yeah. I do my lunch at 8 o'clock. After that, I take a bus for my office. And my duty timing is 9 o'clock. And after 6 o'clock, it's half our duty time. Then I return to my home. That's great. So now, can you convert this daily routine to your brother's routine? क्या आप अपने भाई की रूटीन बता सकते हैं, यही सेम जो आपने बताई है, सिर्फ इसको भाई पे ले जाएं आप बस. कैन यू कन्वर्ट इट? मतलब आपके भाई क्या करते हैं? I will use the name, or just I say that my brother, he wake up, he wakes. You can use he. You can use he. He wakes up early in the morning. He takes tea at 8 o'clock. After that, he goes to school. And he goes to school. I should use S in a second form of he, she, and it. We will use the S form with the verb. Is it? Yeah, we have to use first form of verb with S or ES. With ES. Yeah, you are going well. Yeah. Just say it. He goes to school. After that, he return. He when we say returns, or he return. He returns. He returns from school at 12 o'clock. And then he goes for tuition at 5 o'clock. Yeah, that's it. Okay, so that's the routine, right? Yeah, that's the routine. But I clear that we will use with the first form that ES, he, she, and it. And yeah, I, we, they, we will not use ES and like this. S or ES. We will not use with I, we, they, you, right? So, yes. Muhammad Irfan, you were using, when you were telling about your brother's routine, so you were saying he wake up, he do lunch, and he offer prayer. So you have to remember, when we use he, she, it, or name,
we have to use s or es in verb. If I am saying I do lunch, so my brother does lunch, because he Okay. she it या name में आपको s या yes लगाना पड़ेगा. So Okay, ma'am. I have few examples for all of you, so that you will never ever forget that how we use s or es in our daily life. So just see the first example. It's the newspaper, and in this the girls are playing snooker, right? So now Yes, just yes. read it. Is it visible to all of you? Yes, yes. So anyone can read what is written here? Malala stands in. No, just read this. Yeah, this is the Student play snooker during the... It's not clear. during annual sports. So it is written that students play snooker. Play snooker Right. during annual sports week. Now just focus on students. It's Yeah. plural. So we Yes. used only play. Play. Right? What Yeah. if it is student? So Plays. what? Yeah. If it is only student, then we use play. Yes. And what if we are saying Ali? आगे क्या आएगा अली के? वर्ब क्या होगी? Plays. Yeah. Plays. Ali plays snooker. But if there are 4 or 5 people and they are playing cricket, and it is the habit of them that they play cricket, so what will we say? कि वो cricket खेलते हैं. They play. They play cricket. Right. So let's take another example. Read it. Yes. मैम कैंडी यहाँ से सिग्नल का इशू है, बार बार कट जाता है. इन्फॉर्म करने के लिए मैंने बता दिया आपको अभी. Okay, so are you Nasir? Children enjoy swings Yes. at a local ground. So here is written children enjoy. So why the verb is singular? Sorry, plural. Why it's not singular? Because children are also plural. So make it singular. You should make the sentence Right. singular. How we will make? कैसे बनेगा ये singular? Singular. Children, child. Nice try. मैडम काइंडली अगर न्यूज़पेपर दोबारा रिपीट कर ले आप. जी बिल्कुल करेंगे. बहुत सारे हैं. Don't worry. We were talking about children. A child. Children play cricket. अगर इस सेंटेंस को हमने सिंगुलर बनाना है, कैसे बनेगा? चाइल्ड प्ले क्रिकेट. A child. ठीक है, मैं a child लिख देती हूँ. A child प्ले क्रिकेट. क्या आएगा यहाँ पे? Plays आएगा. Because child is singular. Yeah. एक की बात कर रहे हैं, तो verb भी singular आएगी. So children, अब हमें नहीं पता कितने बच्चे हैं, but they are children. So children के साथ क्या आएगा? Play आएगा. Play. So इसी तरह एक और है. We talked about that if there is an written argument. कौन है ये? किसका माइक है? हमने देखा था कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो रिकॉर्ड में मौजूद हो, उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे. जैसे हमने देखा था दैट प्रॉफिट सेज, हज़रत अली सेज, ये सब हमने डिस्कस किया था. उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट पोस्टमार्टम रिपोर्ट. राइट. सो अभी इसी से रिलेटेड अब आप एग्जांपल देखें. ट्राई टू रीड इट. तोशा खाना से. Toshahana record exposes. देखें, अब तोशा खाना का जो रिकॉर्ड था वो 1 साल पहले हो चुका है. मतलब उसकी जो फाइंडिंग्स थी वो 1 साल पहले आ चुकी हैं. 1 साल पहले नहीं तो कुछ मंथ्स पहले आ चुकी हैं. तो यहाँ पे ये नहीं कहा गया तोशा खाना रिकॉर्ड एक्सपोज्ड, मतलब पास्ट में यूज़ नहीं किया गया. द न्यूज़पेपर यूज्ड दैट तोशा खाना रिकॉर्ड एक्सपोजेस, क्योंकि वो रिकॉर्ड क्या करता है? एग्जिस्ट करता है. दैट्स व्हाई वी पुट एस इन एक्सपोज.
expose is verb and we put s because we are seeing that Tosha Khana record is present in the written form. It's a documented. Is it clear? Shahana record exposes. हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड में मौजूद हो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं. जैसे हमने डिस्कस की थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिले शाह की. तब हमने कहा था कि अगर हम यूज़ करेंगे इसकी रेलिवेंसी तो हम बोलेंगे द रिपोर्ट सेज या द रिपोर्ट टेल्स. अब आप चाहे उसको नेक्स्ट ईयर भी अगर वो केस ओपन होता है, नेक्स्ट ईयर उस केस पे हेयरिंग होती है, तो आप यही बोलेंगे कि उसकी जो रिपोर्ट है वो ये बताती है. जिले शाह पोस्टमार्टम रिपोर्ट टेल्स अस. ठीक है. अब वो रिपोर्ट बनी है 4 माह पहले बट हम पास्ट में नहीं लेके जाएंगे उसको. इसी तरह तोशा खाना का जो रिकॉर्ड है वो कुछ महीने पहले हो चुका है ओपन but still we are using Tosha Khana record exposes. Are you getting? No, madam. Kindly repeat again. हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि जो चीज़ रिकॉर्डेड मौजूद हो, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो कोई एग्रीमेंट हो, वो जब भी हम उसका जिक्र करेंगे हम हमेशा यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. जैसे अगर होली कुरान की हम कोई फ्रेज यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम चोरी पे बात करते हैं तो हम कहते हैं कि होली कुरान सेज टू कट द हैंड वो डू क्राइम्स. ठीक है. तो इसी तरह अब हम यूज़ करेंगे होली कुरान, द होली कुरान सेज. अब 1400 साल पहले कुरान आ चुका है. मतलब अगर इसी तरह देखना होता तो हमें रिटन में पास्ट में बोलना चाहिए दैट होली कुरान सेड. इसी तरह जो प्रॉफिट फरमाते थे, अब प्रॉफिट अभी तो नहीं है ना, बट उनकी जो अहदीस हैं दैट वी हैव इन अ रिटन फॉर्म, तो इसीलिए हम बोलते हैं अहदीस या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या प्रॉफिट सेज, क्योंकि वो हमारे पास मौजूद है. वो जो बोल के गए हैं वो हमारे पास एक रिटन फॉर्म में मौजूद है. इसी तरह जो भी रिपोर्ट्स होंगी जो रिटन फॉर्म में मौजूद होंगी, वो रिपोर्ट जब भी, जैसे हमने करप्शन इंडेक्स का जिक्र किया था तो हमने कहा था करप्शन इंडेक्स रिपोर्ट टेल्स अस. तो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, अभी ये तोशा खाना की हमने एग्जांपल देखी है, तोशा खाना का रिकॉर्ड जो है वो एक्सपोज करता है. क्लियर? अब अगर हम बोल दें कि ये प्रॉफिट मोहम्मद सेड, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा ये वाला. हाँ, ग्रामेटिकल रॉन्ग होगा. अगर आप किसी ऐसे में अपेयर होना चाह रहे हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ग्रामर चाहिए, वहाँ पे गलत हो जाएगा. जैसे आप नहीं बोल सकते अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये फैक्ट है. इसको आप नहीं बोल सकते अर्थ रिवॉल्व्ड या अर्थ विल रिवॉल्व, जैसे हमने कल डिस्कस किया था. आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोलना है. ओके. सो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. ये चेक करें. रेगुलर. एक मिनट जस्ट ये पढ़ें फॉरेन मिनिस्टर से. फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी स्पीक्स ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस. स्पीक्स तक पढ़ना है. अब देखें, the Bilawal Bhutto is sitting and he is addressing to the meeting, or I think he is in conference, women in Islam. Yes. Right? So we used that Bilawal Bhutto Zardari speaks. As you please mute your mic. So we were seeing that Bilawal speaks. Why we use speaks? Because Bilawal is singular. ये सेम वही लिंक करना है जो मैंने आपको कहा था कि आप अपने भाई की रूटीन बताएं. सो योर भाई इज ऑल्सो अ सिंगुलर नाउन. ही, आई मीन इफ ही और शी आपकी बहन है तो आपको उसके साथ वर्ब में जो भी आप उसकी वर्ब लगाएंगे उसमें एस ई एस लगाएंगे. अब देखें, बिलावल हमने लगाया, बिलावल स्पीक्स, राइट. तो ही स्पीक्स, जो भी रूटीन होगी ही शी या किसी भी सिंगुलर नाम की, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? स्पीक्स लगाएंगे. अब जो हम लगा रहे थे ना ही गो, वो गलत हो गया, ही गोज लगेगा. आप इस एग्जाम्पल से आपने याद रखना है कि जहाँ पे भी हमें नाम दिखेगा वहाँ पे हमने क्या लगाना है? वर्ब में एस या ई एस लगा देना है लाजमी. मोहम्मद इरफान, क्लियर?
Yes, yes, ma'am. Clear. भूलना नहीं है अब ये. अब देखें नेक्स्ट. ये पढ़ें. A woman washes clothes. A woman. Washes clothes. A woman washes clothes. अब देखिए यहाँ पे एक वुमेन है, तो वो दिखाया है कि वुमेन वॉश द क्लॉथ. वुमेन वॉशेस द क्लॉथ. अगर ये सेंटेंस ऐसे हो, अब क्या आएगी वर्ड? दोनों में से कौन सी आएगी? वॉश आएगा या वॉशेस आएगा? इस वाली वुमेन के साथ तो देख लिया हमने, वॉशेस आ गया. ये क्या है? कैन एनीवन कंफर्म दैट क्या है? ऊपर वाला वुमेन और नीचे वाला वुमेन. ओके, सो लेट मी टेल यू दैट जब हम यूज करते हैं ना स्पेलिंग MAN, इसका मतलब होता है एक. अब जैसे अगर हम यूज करते हैं MAN, इसका मतलब होता है सिंगल मैन, एक बंदा, कोई भी. ठीक है. लेकिन जब हम यूज करते हैं MEN, इसका मतलब होता है बहुत सारे आदमी. सिंगल मैन के लिए हम यूज करते हैं MAN. MEN होता है जहां हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा आदमी होते हैं जहां पे. अब सेम यहीं पे है. वुमेन जहाँ पे था, अब ये एग्जाम्पल हम दोबारा भी देख लेंगे. वुमेन वॉशेस. अब MAN क्या होता है? जैसे MAN सिंगल मैन था ना, उसी तरह MAN जो वुमेन में होता है ना, वो भी एक सिंगल औरत होती है, वुमेन. अब यहाँ पे MEN है, और इसी तरह ये बहुत ज्यादा औरतों को रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड. अब वुमेन वॉश आएगा या वॉशेस आएगा? वॉश आएगा. वॉश. क्यों? वो ज्यादा औरतें हैं ना. प्लूरल है. प्लूरल है. एग्जैक्टली. विमेन को यूज करते हैं जहां आपने बहुत ज्यादा औरतें रिप्रेजेंट करनी हो ना, वहां पे. अब फॉर एग्जांपल किसी वेडिंग फंक्शन पे हम जाएंगे, तो वहां पे ये वाले वुमेन के लिए अगर आपने कोई भी वर्ड यूज करना होगा कि वुमेन आर कमिंग, जब आप ये वाला लिखना चाह रहे होंगे, चलें बोलने में तो नहीं पता चलता ना, लिखना चाह रहे होंगे ना, तो आप लिखेंगे वुमेन आर. ये प्लूरल हो जाएंगे, ये बहुत ज्यादा है. बट ये होगा तो ये एक की बात करें, इसके साथ इज लगेगा. और जब इस तरह की बात होगी तो ये वॉशेस में जाएगा. अब इसको दोबारा देख लेते हैं हम. न्यू बच्चा है वो अपना प्लीज नोटिफिकेशन करवा दें. ठीक है. अब देखें दोबारा से इस न्यूज़पेपर की एग्जांपल को. अ वुमेन वॉशेस क्लॉथ्स. ठीक है. ये जो आ है ये ऑलरेडी सिंगुलर का भी साउंड दे रहा है. एग्जैक्टली. आ हम सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं, और जो MAN में आ जाता है वो भी ऑलरेडी सिंगुलर ही होता है. ठीक है. तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि देखें वॉश एक वर्ब है ना, उसके साथ हमने ES लगा दिया, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल औरत की वजह से यहाँ पे वॉशेस हो गया. ठीक. अगर यहाँ पे WOMEN होता, तब हमारी वर्ब क्या हो जानी थी? वॉश हो जानी थी. So who have joined us? Uzma? Yes. Just please. I'm new here. Okay, just please give us your brief introduction. I'm Uzma Ghani, and I'm a student of medicine, and I'm here to learn English because I want to clear my IELTS exam. Great. Okay, thank you. So here is another example. Now look at it. Yeah. Now read it. Women feed elephants with bananas on Elephant Day. Yeah. So here is a lady, not a lady. Sorry to interrupt. I can't see your big screen. Are you people facing the same problem? Yeah, it's clear now. It's clear. Okay. So Uzma, for you it's clear now? Yeah.
Okay, that's great. Women feed elephants with bananas on Elephant's Day. Elephant Day. So now just check the spelling of women. It's plural. Yeah. मैम प्लीज मैं नमाज पढ़ते तो नमाज का टाइम हो गया नमाज पढ़ी होगी Who is here? Muhammad Irfan? ओके थैंक यू I will provide you the recording. Okay. So we were talking about the spelling of women. So here is WOMEN. So it's singular or plural? Plural. Exactly. If it were WOMAN, then verb क्या होगी? Singular. Verb feeds. It's singular नहीं आएगा तो तब हमारी वर्ब चेंज हो जाएगी और वो हो जाएगा फीड्स. तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही एग्जांपल है जैसे अभी हमने की है कि एक MAN वाला होगा तो वर्ब हमारी चेंज हो जाएगी, बट जब प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारी प्लूरल हो जाएगी. ठीक है, अब ये नेक्स्ट देखें. अच्छा, I want to make sure कि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा. एग्जैक्टली, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी होगा. अगर सब्जेक्ट आपके सिंगुलर है, ही है, तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी. और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम वर्ब में एस या ES लगाना पड़ता है, क्योंकि जो गिवन वर्ब होती है ना, अब जैसे ये गो है, ठीक है, ये गो हमारे पास प्लूरल वर्ब है, इसको हमें सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एस या ES पुट करना पड़ेगा. अब ये सिंगुलर बन गई है. अब आपका जो सब्जेक्ट होता है ही, प्लूरल हो गई ना. अब ES आ गया तो प्लूरल नहीं हो गई है. अब ये सिंगुलर हो गई है. प्लूरल हमारे पास सिंपल फॉर्म जो होती है ना, वो प्लूरल होती है. जो भी वर्ब की फॉर्म हमारे पास मौजूद है वो प्लूरल है. हम बनाते ही इन्हीं चीजों के लिए इनको सिंगुलर है. जब आप ही, शी, इट यूज करेंगी तो वो सिंगुलर बनेगी वर्ब उनके साथ, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है. ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है. जब आप नाउन में एस या यस लगाते हैं ना, वो प्लूरल बनता है नाउन में, बट जब आप लाइक मैडम काइंडली अगर एक एग्जांपल दे दें. एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको. वेस्ट डस्टर, अब देखिए एग्जांपल है हमारे पास पंजाब असेंबली. अब यहाँ पे वर्ब हम डिसाइड करेंगे, मेक या मेक्स. Makes. ठीक है, अब ये हमारे पास नाउन है या सब्जेक्ट है. अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं. ऑल प्रोविंशियल असेंबलीज. अभी हमने क्या बात की है, हम जब भी नाउन को प्लूरल बनाते हैं उसमें एस या एस लगाते हैं. नाउन को प्लूरल बनाया अभी हमने. ठीक है, ये हमारा नाउन था, ये सब्जेक्ट था. ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था. एक मैं पंजाब असेंबली की बात कर रही थी. अब मैं बात कर रही हूँ ऑल प्रोविंशियल असेंबलीज, चारों प्रोविंशियल असेंबलीज की, पंजाब की, सिंध की, KPK की, बलोचिस्तान की. तो अब यहाँ पे देखते हैं मेक या मेक्स लॉज. अब यहाँ पे देखें, नाउन हमारा सिंगुलर है. ठीक है, तो वर्ब ये तो प्लूरल है हमारे पास, मेक. ये प्लूरल हो गई. अब हमें चाहिए सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए. जो हमारे पास गिवन वर्ब्स होती है ना, वो प्लूरल होती हैं. उसमें हम एस या एस लगा के उसे सिंगुलर बनाते हैं. तो पंजाब असेंबली सिंगुलर है तो वर्ब को हमने सिंगुलर खुद से बनाया है, क्योंकि वर्ब हमारे पास प्लूरल फॉर्म में थी. बट नाउन को हमने प्लूरल बनाया. अब देखें ऑल प्रोविंशियल असेंबलीज. अब क्या आएगा, मेक आएगा, मेक्स आएगा? मेक आएगा. क्यों? क्योंकि नाउन हमारा प्लूरल बन गया. हमने नाउन में एस लगा के उसे प्लूरल बना दिया. तो अब जो गिवन वर्ब्स होती हैं वो वैसे ही प्लूरल होती हैं. अब इसको खुद से हमने प्लूरल बना के इसके इक्वल लेके आए हैं. ऑल प्रोविंशियल असेंबलीज मेक आएगा. अब ये एग्जांपल है. नाउन में हम एस ये लगा के प्लूरल बनाते हैं और वर्ब में इसी तरह सिंगुलर. वर्ब में जब ES होगा तो वो सिंगुलर होगा जी, और जब नाउन में एस होगा तो वो प्लूरल होगा. ओके, गॉट इट. देखिए क्लियर एग्जांपल है. नाउन में हमने एस लगा के इसको प्लूरल बनाया है. ठीक है, वर्ब में हमने एस लगा के उसे सिंगुलर बनाया है.
ये अपोजिट केस है, बस आपने इतना याद रखना है कि जब हम नाउन में लगाते हैं तो डेफिनेटली ये तो कॉमन सेंस की बात है कि वो प्लूरल बन जाता है नाउन, ठीक है, बट ये उल्टा हो जाएगा वर्ब के साथ। वर्ब आप सिंगुलर बनाते हैं एस लगा के। अच्छा आप ये देखें ना, आपने कभी कहा है दे गोज? ये कभी कहीं नहीं सुना हमने दे गोज। हम हमेशा कहते हैं दे गो, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है। तो गो हमारे पास ऑलरेडी प्लूरल वर्ब जब है तो हमें क्या जरूरत है उसमें एस लगा के उसे सिंगुलर बनाने की। हम सिंगुलर हमेशा ही शी इट के साथ बनाते हैं क्योंकि ही शी इट खुद से सिंगुलर है। बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। गॉट इट मैडम। ओके, सो हम एग्जांपल देख रहे थे इसकी। हाँ, इसे रीड करें। लेडी डॉक्टर examines a plant अ पेशेंट At a pre-eye medical camp. अब देखें आ लेडी डॉक्टर है। examines अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक लेडी डॉक्टर है, तो हमने क्या किया है, वर्ब में एस लगाया हुआ है, एग्जामिन्स किया हुआ है, उसको सिंगुलर बनाया है वर्ब को, क्योंकि हमारा नाउन सिंगुलर है, एक लेडी डॉक्टर है, ठीक है। इसी तरह जब हमने ही शी इट यूज करना होगा उसमें भी हमें एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ वर्ब में एस लगेगा। गॉट इट? yes ma'am अच्छा अब नेक्स्ट देखें, ये पढ़ें। People watch gas balloons fly in sky during 5 working days. Balloons over. बस ठीक है। अब सिर्फ पर्पस ये था कि पीपल जो है ना वो वॉच आया हुआ है। पीपल क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है? plural अगर यहाँ पे इतने सारे लोग होने की बजाय अगर कोई एक बंदा देख रहा होता तब हम क्या कहते? Person watches. वॉचेस। फिर हमें वर्ब भी अपनी सिंगुलर करनी पड़ती क्योंकि पर्सन जो है वो सिंगुलर है। पीपल ठीक है, हमारे पास हमेशा से प्लूरल ही रहा है, तो हमारी वर्ब जो रहेगी वो सिंपल प्लूरल ही रहेगी, वॉच ही आएगा। गॉट इट? अच्छा एक कॉन्सेप्ट था पुलिस, पीपल की तरह ही पुलिस जो वर्ड है, पुलिस या आर्मी, ये भी यूनिट की तरह ही लेते हैं हम। अब अगर मैंने बोलना है कि पुलिस क्राइम को कंट्रोल करती है तो क्या आना चाहिए? पुलिस कंट्रोल या कंट्रोल्स? Controls. control आए क्राइम क्या आएगा? कंट्रोल आएगा। क्यों? Controls maybe. पुलिस जो है ना यूनिट है, प्लूरल है। ठीक है, बट अगर कोई एक पर्सन है वो क्राइम कंट्रोल करता है तब क्या बनाएंगे हम? कंट्रोल्स। ठीक है, अब इसका ऐसे बन सकता है अगर आपने बनाना है, पुलिस मैन। अच्छा ये वर्ड सही है? एक मिनट मुझे पूरा सेंटेंस लिखने में। अब बताइए सेंटेंस ठीक है? नहीं ये गलत। No, control आएगा साथ में. कंट्रोल आएगा Because there is men. अच्छा अगर मुझे ये हटाना है, अब इसमें क्या मिस्टेक है? पुलिस मैन। अब कैसे करेक्ट कर सकते हैं इसे? तो सही है ये. ग्रेट, आर यू गेटिंग? ठीक है, अगर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अगर वर्ब को नहीं चेंज करना तो अब कैसे ठीक होगा ये? अगर वर्ब को नहीं चेंज करें तो MAN आ जाएगा, police man. एग्जैक्टली, फिर आएगा MAN। ठीक है, ये है सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट। ये बहुत ज़्यादा तंग करता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा पता ही नहीं चलता सिंगुलर कहाँ यूज़ करना है, वर्ब कहाँ सिंगुलर बनानी है, वर्ब कहाँ प्लूरल बनानी है। अच्छा बिल्कुल इसी ही की तरह एक और सेंटेंस देखें यहाँ पे, ये पढ़ें। Corruption make. मैम नजर नहीं आ रहा. Corruption makes people unable.
टू access is justice. अब देखिए करप्शन मेक्स लगाया है हमने। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं ना किसी टॉपिक पे और आप बता रहे हैं कि करप्शन जो है ना उस वो तो तबाह कर देती है हर चीज़ को, तो आपको क्या बोलना होगा? करप्शन मेक्स। ठीक है, इसी तरह करप्शन मेक नहीं बोलना क्योंकि करप्शन भी सिंगुलर उसमें जाएगा। करप्शन मेक्स, डिबेट करते हुए अगर आप किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो ये करप्शन मेक्स ही बनेगा, राइट? सो इसी तरह ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इसको आपने देखना है। अब हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? ठीक है, अब्दुल रहमान, आर यू देयर? मैम मेरे पास स्क्रीन बहुत छोटी आ रही है ये आपकी वीडियो की, इसका से पूरा दिख नहीं रहा मुझे। जी हम हियर। बाकी मैडम काइंडली ये 3 डॉट्स है, इस पे क्लिक करें मोबाइल तो ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन आपको देगा। शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, फुल स्क्रीन तक नहीं आ रहा। 3 डॉट्स शो हो रहे होंगे आपके पास। यस मैम। आपकी ओके गॉट इट गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, सो अब्दुल रहमान, आर यू देयर? जी हम हियर। Abdul Rahman, if I give you the situation, so could you make it possible to make us understand that कुछ ऐसा है कि आप एक पार्क में जाते हैं डेली, राइट? और आप उस पार्क में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देखते हैं जो डेली रूटीन पे होती हैं, मतलब लोग आ रहे हैं वहाँ पे और बच्चे झूले ले रहे हैं, जो भी एक सिनेरियो आप क्रिएट कर सकते हैं, तो आप मिक्स करके बता सकते हैं, मतलब दोनों आपने यूज़ करने हैं, ही शी इट को भी यूज़ करना है और आई वी दे यू को भी, एक पूरी केस स्टडी हमें बना के दे सकते हैं। सिचुएशन बतानी है क्या कर रहे हैं लोग। हाँ जी। आपने मैंने अपना खुद बताना, मैं पार्क गया उधर जाके देखा है ऐसे। जी 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 जी, जो आपके माइंड में आ रहा है ना। दिस मॉर्निंग नजर नहीं आ रहा। स्क्रीन से कुछ करना भी नहीं है अभी, वी आर जस्ट टॉकिंग। ओके, सो अब्दुल रहमान, यू कैन कंटिन्यू। Yeah, this morning I went to the park. I've seen people there jogging, walking, and running on the paths. And I've seen children there. They were playing and riding. Yeah, everyone was like busy in their own work, and they were quite happy with that. So I was just saying that हमें present indefinite में चाहिए. For example, if I go to the park, I see that people come on daily basis. देखिए मैंने people के साथ come लगाया है. People come on daily basis. Child comes on daily basis with their parents. So जिस तरह comes, then I saw a girl who comes for a walk. अब देखें इस तरह से मुझे कुछ चाहिए, कुछ इस तरह से मतलब अरेंज हो सकता है? May I? Yeah, sure. I used to go to a park daily where I see people doing jogging. Like doing तो नहीं आएगा, where I see people jogging and they start their morning in a healthy way. Some people bring some people bring their breakfast to do it in a open air, to have it in a open air. They also come with their children, so they can spend some time with their children. And ग्रेट एफर्ट, बट इसमें थोड़ा सा ही शी इट किसी को बीच में फिक्स कर दें. You saw a girl. I also saw a girl and I became a friend with her. I became a friend with her and she was and then I found out that she is also my relative. That's great, Usma. That's very great. Okay, so Major, who is here, you have any question? You raised your hand. No question regarding this. And there is another person who is Major, I think. Major, are you there?
What is your full name? मैडम, मेजर साहब ने कहा कि दोबारा रिपीट कर ले, क्योंकि उसने प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया, 2-3 मैसेजेस भी किए. Okay, I was not able to see. Okay, Major, we will repeat and we will provide you the recorded lecture. Don't worry about it. And Ali, are you there? Yes, ma'am. Ali, you also tell me about the situation that you were on the road yesterday and you were seeing different kind of activities on the road. So now you have to tell me that why people were performing their work on road. Just tell me about that. कि लोग क्या कर रहे थे मतलब डेली बेसिस पे. It's too too difficult for me to. ओके तो कुछ सिंपल में कुछ भी सिंपल में आप हमें बता सकते हैं आपके ऑफिस में जो पीएन है वो क्या करता है डेली. Daily routine. He's फॉर एग्जांपल cleaning the offices. जैसे अगर मुझे बताना हो कि मेरे ऑफिस में पीएन है, ही कम्स ऑन टाइम, ही सर्व्स मी टी एंड देन ही ब्रिंग्स फाइल्स एंड देन ही पुट्स एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेक्स अस हैप्पी, इस तरह का कुछ भी. मोहम्मद इरफान. Yes, ma'am. कुछ मुझे बताएं कि अगर कोई सर्वेंट है ऑफिस में उसकी रूटीन क्या होती है डेली की, बता सकते हैं. बहुत सिंपल है, वो जो ही वाला हमने फॉर्मूला लगाया है वही लगाना है. अब देखें आपने बोला था आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. Yeah, he always wake up on 8 a.m. I usually have breakfast 7:30. मैडम काइंडली इशू ये है कि मैं एक ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, इस वजह से शोर है, मैं प्रॉपर कन्वर्सेशन नहीं कर सकता. तो सॉरी, इस वजह से मैं बंद कर लेता हूँ. मोहम्मद इरफान, मैं आपको ये बता रही थी. He walks up early in the morning and he goes to office and clean all rooms, and 8 o'clock all office staff take a tea and Abdurrahman, do you want to try? Abdurrahman, are you there? Yeah, do I have to mention any office situation or something else? You can do, or you can also tell us about your PN who is in office, how he does his daily work. Yeah, basically I'm not working in the office, I'm working like in a manufacturing unit. So I can tell you about my colleagues and other people, other staff, what their daily routine life is. So basically when I come to the office or when I come to the work, I see few of my friends, they working in the office as like admin work, and one of my friend, his name is Ali, he works as a like machinist. So every morning I see him like working next to the machine. Or if I go a little bit further up, I can see one of my other friend. So normally he's like working as a receptionist. So he take everyone into the register whenever someone enter the building or leave the building. So that's his job is. So yeah. Kuch aur. That's great. The basic purpose was this exercise that आपको S या yes he she it के साथ लगाना आ जाए, because the more you will practice the more you will be expert in it. क्योंकि ऐसा है, देखें अब सबको पता है कि he she it के साथ S या yes लगता है, but जब तक practice नहीं होगी ना, and seriously I don't want to interrupt the people who are speaking, because
इंटरप्ट करने से ऐसा होता है कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आप बस इसी उसमें लगे रहते हैं, अच्छा यहाँ ऐसा आएगा, यहाँ ES आएगा। ऐसा वन नाइट में तो होने वाला है नहीं। सो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। बोलते रहें। इट्स ओके इफ़ यू आर पुटिंग पीपल विद S और ES, इफ़ यू आर सेइंग पीपल यूजेस मोबाइल, अगर आप ये भी बोल रहे हैं ना तो ठीक है अभी के लिए, बट द टाइम विल कम व्हेन यू विल सी पीपल पुट और पीपल पुट्स, आपको डिफरेंस खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें। चलें अब इसके नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। शुड वी मूव फर्दर? Yes, please. क्या होगा, पीपल पुट एक्स्ट्रा टाइम ऑन मोबाइल या पीपल पुट्स एक्स्ट्रा टाइम ऑन मोबाइल? People put. पीपल पुट, यस। अच्छा देखिए, एक डू होता है इसी टेंस में और एक होता है डज। फिर से प्रॉब्लम आ रही है। अब डू हम यूज करेंगे आई, वी, दे, यू के साथ, और डज हम यूज करेंगे ही, शी, इट और किसी भी नेम, सिंगुलर नेम के साथ। ठीक है, बट जो इसको बनाने का फार्मूला है ना वो होगा हमारे पास, पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे डू या डज। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई है तो मैं लगाऊंगी डू, क्योंकि आई के साथ डू लगेगा। ठीक है, इसी तरह फिर हम आगे जाएंगे, नॉट लगाएंगे। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर मैं लिख रही हूँ ना ये सिर्फ नेगेटिव के लिए होगा। अब जैसे मैंने कहा था ना, मैं वॉक पे जाती हूँ, अगर मुझे ये बताना है कि मैं वॉक पे नहीं जाती तो तब हम किस स्ट्रक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, फिर हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब हमें नेगेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का जिन दो वर्ब्स का सहारा लेना पड़ता है वो डू और डज है। इन हेल्पिंग वर्ब्स का सहारा लेना पड़ता है हमें ये बताने के लिए कि मैं ये काम नहीं करता। आप क्रिकेट खेलते हैं, आप बोलते हैं आई प्ले क्रिकेट, सिंपल बोल दिया आपने, प्ले लगा दिया। बट अगर नहीं खेलते तब कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता? I do not play cricket. आई के साथ हम लगाएंगे डू, फिर हम लगाएंगे नॉट, और फिर हम लगाएंगे वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म जैसे हमारे पास मौजूद है। ठीक है, बट अगर वो क्रिकेट नहीं खेलता फिर क्या बनेगा? He does not. ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। सेम उसी तरह ही के साथ हम यूज करेंगे डज, शी के साथ डज यूज करेंगे जैसे हम वर्ब में यूज करते आए हैं SEAS। अगर वो क्रिकेट खेलती है तो क्या बनेगा? She plays cricket. शी प्लेज क्रिकेट। यही डिफरेंस क्रिएट करता है शी प्लेज क्रिकेट। बट अगर वो नहीं खेलती तब हम इस स्ट्रक्चर से देखेंगे, शी के साथ हम डू लगा सकते हैं? No. नहीं लगा सकते। शी के साथ हमें यहाँ से देखना है, हम लगाएंगे शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये है नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अब जो जो आपने अपनी डेली रूटीन मुझे बताई थी ना उसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे हम। अब मैं बोल रही हूँ कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये तो मेरी रूटीन हो गई, बट अब मुझे बताना है, कोई मुझसे पूछता है कि आप जल्दी उठती हो, तो मैं बोलती हूँ नहीं मैं जल्दी नहीं उठती। तो अब इसको नेगेटिव सेंटेंस में जब मैं बोलूँगी ना तो मुझे ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, दैट आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और फिर अगला जवाब आता है कि आपकी बहन भी जल्दी उठती है, तो मैं क्या बोलूँगी? शी डज नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, क्लियर है ये? Yes, yes. ठीक है, अब देखते हैं शी डज नॉट, अब क्या आएगा? प्ले आएगा, प्लेज आएगा? Play. प्लेस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ नट है तो she singular है, यहाँ सिर्फ play आएगा। हम तो शी के साथ प्लेस लगाते आए हैं, तो यहाँ क्या हो गया हमें? वो पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव है। देखें, वर्ब जो है ना डू, इसी के अंदर जब डज लग गया ना तो अभी आगे जाके हमें वर्ब में लगाने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा हमें SES नहीं करना। अब देखें, जैसे हमने देखा अभी शी प्ले क्रिकेट,
अब देखें हमारी यहाँ पे वर्ब में एस लगा हुआ है, राइट, बट जब मैं बता रही हूँ कि नहीं वो क्रिकेट नहीं खेलती, तो शी डज नॉट प्ले, यहाँ पे प्ले इसलिए हमने हटाया है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने हेल्पिंग वर्ब डज लगा दी है। अब यहाँ पे फिर से प्लेज नहीं लगा सकते हम, मतलब इतना ज़्यादा इतना ओवर नहीं करना। जब एक बार लग गया शी डज नॉट, तो अब सिंपल ही रखना है हमने सेंटेंस को, फिर आएगा प्ले। ये फ़र्क है नेगेटिव में। जब आप सिंपल बोल रहे हैं तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली मेन वर्ब है, उसी में आपने एस लगा के सेंटेंस खत्म करना है। शी प्लेज क्रिकेट, शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गाती है, ठीक है। तो इसी तरह शी डज नॉट, जब यहाँ पे डज में हम डू में हमने लगा दिया, डू कोई काम करने को ही बोलते हैं ना, डू में हमने लगा दिया तो आगे हम नहीं लगाएंगे, प्लेज नहीं करेंगे, ठीक है। गॉट इट? मोहम्मद इरफान अली? यस यस। अच्छा मुझे बताएं, अब वो वॉक नहीं करती, She does not walk. वो बाजार नहीं जाती, She does not Go to bazaar. She does not. ठीक है। वो गाना नहीं गाती, She does not sing. sing a song. ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर नेगेटिव का। अब हम कल डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव भी, और साथ में ये डिस्कस भी करेंगे कि जितनी भी है आपने नेगेटिव बनाते रहना है। जो भी हमारी डेली रूटीन होगी उसको हम कन्वर्ट करते जाएंगे नेगेटिव में। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं उसको हम कन्वर्ट करेंगे सुबह नहीं उठता, फिर अगर आप 8 बजे जाते हैं तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे मैं 8 बजे नहीं जाता, ठीक है। ओके। अब्दुल क्लियर? मैम मुझे टाइमिंग कंफर्म करनी है, और ये जो टेंसेस आप सिखा रही हैं, मुझे तो थोड़ी सी एडवांस इंग्लिश सीखनी थी, तो उसके लिए भी यही क्लासेस हैं? ठीक है, आप कांटेक्ट करेंगे ना, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। मेजर उस्मान, आर यू देयर? ओके, अली? Yes, ma'am. Any question? No, it's clear, ma'am. Abdurrahman? Yes, good. Okay, मोहम्मद इरफान? Yes ma'am. ठीक है, I am clear. ठीक है। तो हम कल कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास स्पीकिंग प्रैक्टिस के साथ ही।